इंटीजर्स में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो नेगेटिव नंबर है सर, इसमें क्या बात है। ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये और क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है। अब हम इसको भी ऐड कर दें इसमें तो क्या बन जाएगा, ये पार्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा होल नंबर। सो पहले की तरह कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो here we can say, here we can say, it is visible everyone, okay, here we can say that every integer may not be a natural number, whole number। क्यों नहीं है, -5 क्या होल नंबर है, नहीं है ना, -5 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, लेकिन ये इंटीजर है, हाँ है। सो एवरी इंटीजर may not be a natural number and whole number, but every whole number is an integer, and we can say that also every natural number is an integer। Is it clear to all of you? सही है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, मिस्ट्री देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने बनाया यहाँ पे, क्या ये, सॉरी खराब बन गया ना, ये मैंने यहाँ पे बना दिया छोटा सा, क्या ये, क्या है ये है 0, और क्या है ये है अंडा, और क्या है ये है ऑरेंज, और क्या है ये, बहुत सारा है, छोड़ो। सो ये है 0, मैंने क्या बोला था, 0 होता है हीरो, क्योंकि बिना 0 के कोई काम नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स इज impossible without 0. Our life will be impossible without 0. Do you know why? Because we use 0 everywhere. If you can think of anything, like you are having 10 rupee note, so what does it have, 1 0, we are getting salary, so is it possible that, suppose I am getting 10,000 rupees per month, okay, I am earning this 10,000 rupees, so can I deduct all those zeros, and what I am getting then after deducting all the zeros, 1 rupee. So can you think of it, we are doing work, we are earning 1 rupee only, or what's the maximum number, what's the largest one digit number, 9. So can we, no. So you can then say that, sir, 9,999, this can be the earning, like after deduction of 1 rupee. Yes, it can be, but it will also be there, 10,000 minus 1 is equal to 9,999. So we cannot get the currency of
9999. So 0 is so important. So who discovered 0? Who discovered 0? Go and look for it in your ZK book and then tell me. Okay? He was a great mathematician. Who was he? He was a great mathematician. Okay, so you have to look for it. Who discovered 0? And please comment. Let me see how many of you know the answer. But yes, don't cheat from the Google. You have to learn it by your own. Is that clear to you? So अब हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो अपने आप में बहुत बड़ा है. Any number multiplied by 0 will be 0. Any number add will be 0. When we add any number with 0, the number will be same. If you subtract any number with 0, if you subtract 0 from any number, the number will be same. Okay, clear? If we divide some number with 0, it will be undefined. How? I will tell you later. So for now only you have to look like 0 upon something will be 0, but something upon 0 is equal to undefined. We cannot define it. This is the rule of mathematics. So everyone, up to this clear, so that we can proceed further. If you are satisfied, then only. Okay, let's go. So one important concept we are left with as of now is नंबर लाइन. हमें अब नंबर लाइन के बारे में जानना चाहिए. वक्त, वो कहते हैं ना, वक्त आ गया है जब हमें नंबर लाइन के बारे में भी पता हो. हा 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 हा. So what we will do now, we are going to draw a line and we'll name it. I'm drawing a straight line. That's it, isn't it? कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया अभी तक नहीं किया ना. अब देखो मैंने ये क्या किया, हीरो बना दिया. अब देखो इसका मिड पॉइंट मैं ढूंढूंगा. कितना है मिड पॉइंट? अब अगर ऐसे देखेंगे तो एक ये इधर, हम यहाँ पे मिड पॉइंट मिला मुझे. लेट्स सपोज यहाँ पे मिड पॉइंट मिला. हमें मिड पॉइंट को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? 0. नंबर लाइन क्या करता है पता है? नंबर लाइन just specifies the integers. The integers. थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, so you have to adjust it. ओके ना? So the integer. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमने क्या देखा था पहले. हमने यहाँ पे हमारे पास में अगर आप पहले देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा था? इंटीजर्स -∞ to -1 to 0 to +∞. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा सीधा इसको पुट आउट कर देंगे. क्या कर देंगे? पुट कर देंगे. जैसे यहाँ 5 से जाते हैं,
राइट जब चलते जाएंगे ना तो पॉजिटिव, लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव, और बीच में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। बताया था ना, न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चलते गए, 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 नेगेटिव साइड भी चलते गए, चलते गए, चलते गए। ये इक्वल रहेगा, ये जो पार्ट है ये इक्वल रहेगा, ये वाला एरिया, ये डिस्टेंस सब इक्वल रहेगा। ये थोड़ा यहाँ पे लाइन बनाया हूँ ना, मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको स्केल से बनाना है ये, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 यहाँ करके इन्फिनाइट कर देते हैं। और इधर जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। क्लियर है। हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये देखो, माइनस इन्फिनाइट, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, that's it. So there will be a positive number, it has 0, this is negative. So this is number left side of 0, ये right side of 0, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, वो राइट डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में आगे जाते हैं, लेफ्ट इन द सेंस, अगर आप सोचो कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर हम ये कहते हैं कि हम राइट साइड जाते हैं, राइट साइड मतलब सही, तो लेफ्ट साइड को हम क्या बोलेंगे, आप वीडियो में शब्द पढ़े हो ना, सही का उल्टा क्या होता है, गलत। तो लेफ्ट को मैं रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए कि मैं गलत तरफ जा रहा हूँ। गलत तरफ जाऊँगा तो क्या होगा, मेरी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी मेरी वैल्यू। और अगर मैं राइट साइड जाऊँगा यानी सही रास्ते पे जाऊँगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। और अगर मैं वहीं पे हूँ, 0 पे हूँ यानी न्यूट्रल पोजीशन पे हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या हो रहेगी, 0। आई बात समझ में। सपोज करो अगर मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मुझे जाना है ए पॉइंट पे और ये रहा बी पॉइंट। इधर क्या है, इधर इसको मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ बी पॉइंट और यहाँ पे करता हूँ ए पॉइंट। ये है मेरा 0 पॉइंट मतलब न्यूट्रल। ये है मेरा माउंटेन। माउंटेन का नाम सुने हो ना, पहाड़। तो सपोज करो ये मेरा माउंटेन है और ये बी पॉइंट क्या है मेरा, खाई है। खाई मतलब खाने वाला खाई नहीं, ये गड्ढा है, गड्ढा है। अगर हम इधर जाते हैं तो गिर जाएंगे, इधर जाते हैं तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, उठते हुए जाएंगे, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो 0 से हम इस तरफ गए यानी कि राइट साइड गए, तो क्या हो गया, हम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, क्या करेगी, वैल्यू विल इंक्रीज, होगी कि नहीं होगी। और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो, अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम हो जाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हम हो गए गलत, और गलत होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी वैल्यू कहाँ होगी, वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। अब सोचो हम अगर ग्रो कर रहे हैं तो हम हमारी वैल्यू मतलब इंक्रीज हो रही है, और अगर हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं हिलूंगा ही नहीं, तो क्या हो गया, ये हो गया
न्यूट्रल, हम कहाँ पे हैं, न्यूट्रल पोजीशन पे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मैं कि मैं अभी जो जो पढ़ा रहा हूँ आप इसको फोकस करके सिर्फ सुनिए, समझिए और देखिए, क्योंकि ये सारे कंटेंट जो है वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। बस आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कोई कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ट्रिक है, ऐसा कुछ ट्रिक तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो आप नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया मैंने कि हाँ आपको नोट डाउन नहीं करना, आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं, तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए और यहाँ पे आप समझिए उस चीज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए बस। बाकी चीज़ें छोड़ दो, बाकी चीज़ें जो लिखने का है वो होता रहेगा, वो तो ऑब्वियस बात है। हम लोग कॉपी भरने में एक्सपर्ट हैं। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो यही है कि कॉपी भरते जाओ जितना हो सके, दिमाग भले खाली रह जाए, कॉपी भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। सो हमें क्या करना, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कहाँ जाना होगा, राइट डायरेक्शन में जाना होगा, यानी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और यहाँ करना होगा, क्या करना होगा, रटना होगा। मैं हमेशा अपनी बहन को कहता हूँ कि याद मत करो, हर वक्त रटना नहीं चाहिए कुछ चीज़ें। अब मैथ्स तो ऑब्वियस बात है, आप याद नहीं कर सकते, तो चीज़ों को समझो, रिलेट करो। सो अभी तक हमने क्या समझा, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, नंबर्स, ये सारा गेम हम नंबर्स पे कर रहे हैं। टाइप ऑफ नंबर्स हमने देख लिया, नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर था, उनके बीच का रिलेशन हमने देख लिया कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर, सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो जो है वो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात करें तो उसमें होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आता है, ज़ीरो भी आता है। तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, बट इट इज़ ज़ीरो ओनली, इट इज़ नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव वन। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, सो अभी के लिए यहाँ पे अभी रोकते हैं क्लास को, और दोबारा मिलेंगे हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको डाउट हो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ये ना करते करते 40 मिनट का वीडियो बन गया है, तो आप ये देखिए। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे है, आप मेरी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, तो आप वो करिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो चीज़, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और खुद को और खुद के एटीट्यूड को हमेशा कहाँ रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमें ग्रो करना है, ओके देन बाय।